Warren, Old Rajendra Nagar. First of all, let us be clear. What language will you prefer? Purely in English, mixed, English, bilingual. Yes, I shall try at my best to cater to your interest or possibly the interest of all of you. Let us brief first. मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि I have not appeared in Rajendra Nagar just to, is it okay? Come to the point. I have not just appeared in Rajendra Nagar just to unfold a new coaching. Suppose so many banners are here, so many people are working, so many institutes are up and doing to teach their students. I have come with the specific objective, that is paradigm shifting. If you people may have just watched my advertisement, you may find a term to be a thinking creation. मतलब आप लोगों ने अगर मेरा एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो वहां पर एक स्लोगन आपको मिलेगा, to be a thinking creature. My students, what happens? You people are very laborious, and so far I have gathered the news about you people. You people are supposed to be illustrious from the academic point of view, too much laborious, always believing in the matter of fact, not getting swayed away by emotions, sentiments, etc. etc. काफ़ी कुछ आपके बारे में सुन रखा है और बहुत कुछ तो सुना चुका है आपका वो टीवी सीरियल, क्या नाम था उसका, एस्पिरेंट, कि भाई कोलबाग में किस तरह के स्टफ होते. My main program has to unfold itself from June onwards. But in the meantime, some of the students just requested, your program will unfold itself in June, but up to June we will be finished because we have to undergo an ordeal of pre-examination. So what you are doing for prelims exam exclusively. इसलिए बीच में हमने थोड़ा सा प्रीलिम्स का एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए लाया है जिसका नाम है संपूर्ण पीटी. Although this term is, here I have to be a bit cautious about the term Sampurna PT. This consists of two programs. One program is a 90-hour class for CSAT. Because the previous year I am myself is having a bitter experience, it is a matter of chance that I was at the examination center itself during the first sitting and second sitting both. In the first sitting I realized that during the second sitting only 70 to 75% students returned at the center, 25% vanished in the first sitting itself. मतलब कि 25% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको कि फर्स्ट सिटिंग में अनुमान लग गया कि सेकंड सिटिंग देने का कोई फायदा नहीं, they vanished. And in second sitting, after returning from the examination center, I realized that the students, some of the students virtually burst into tears after confronting the question of prelims, when it's CSAT. On that day I realized, because in CSAT part, very frankly I have to share with you, I am having the expertise in comprehension part, but today what you know as comprehension, tomorrow I will make you clear कि comprehension exclusively comprehension नहीं है. कभी आपने देखा है comprehension के size को? That is critical reasoning, not comprehension, critical reasoning. And apart from that, mathematics, math as well as, you know, the reasoning, the two parts. So in math and reasoning, I am beware of math and reasoning myself. So I will not help you in math and reasoning. Mr. Rajesh Mishra
a good teacher he is, you may be familiar with. He will involve you for 75 hours in CSET program, and exclusively 15 hours I will allocate myself for this comprehension or the critical reasoning part. Actually, many of you are coming from the science background. Can you give me the information? If the class B communicative, that is better for us. मतलब ऐसा नहीं हो कि वन मैन डायलॉग हो, मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहें और सुनते सुनते बोर हो जाएं. क्लास थोड़ा सा कम्युनिकेटिव हो, थोड़ा सा आप भी, मैं सवाल करूं आप भी जवाब देंगे. जैसे हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंस? आप में से कितने इस क्लास में ऐसे हैं जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? ओके. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम प्योरली साइंस और इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एटसेट्रा बैकग्राउंड? सो मेनी. आपकी ORN में साइंस और इंजीनियरिंग वालों की संख्या ज़्यादा होती है. सो फार आई एम गैदरिंग द इंफॉर्मेशन. तो मैं स्टूडेंट्स, ये दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दो स्टेज पर मैं प्रॉब्लम देखता हूँ. मैंने मुखर्जी नगर में तो अधिकतर सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन साइंस वाले भी होते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी होते हैं. दो स्टेज पर मैं प्रॉब्लम देखता हूँ. एक स्टेज का प्रॉब्लम पर्टिकुलरली those students who are coming from social science. After doing 10th, 11th, 12th, whatever may be, they are just moving toward the university education. And in university education, the one major lacuna of this system is that this education is not going to engage the students all the year. Course is for 2 years, graduation course, and then you can say even the post-graduation course. But that is just like the picnic part of the life, because the time is spent there, months and months elapsed, and nothing concrete is being done. And just before 1 month of the examination, you know, the teacher or department is providing 5 to 7 topics or 10 topics maximum. You have to go through them and qualify the examination. And surprisingly, you can say that many students even getting first class, some of even reaching the status of gold medalist, but they are not having the grip over social science. Many students, there may be exception. I myself is coming from social science, for your kind information, but I used to be a very serious student. मैंने ग्रेजुएशन का एंजॉयमेंट ही नहीं किया कि कैसा होता है. लोग कहते हैं कॉलेज में बहुत मस्ती होती है, वो मस्ती हमने देखा नहीं, क्योंकि शुरू से ही हम अपने वर्क में लगे रहे. तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं. हम ये नहीं कहते हैं कि सोशल साइंस वाले, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम आई एम टेलिंग. तो आप में से साइंस और इंजीनियरिंग वाले हो, वो करते क्या हो कि क्लास 10th तक, अप टू क्लास 10th you are in the common education. After that you are going to, your education part is going to bifurcated, and you are just going for the professional degree or whatever. So your direction is different, you know. Mr. Vikas, any problem? Okay. अब नाउ आर यू क्लियर? तो कोई प्रेशर में मत आया करो, मतलब जब कुछ है तो बताया करो सीधे. हाँ, come to the point again. In class 10th you can say you people have spent too much time over mathematics, physics, chemistry, etc. That is going to give you the job in future. And what you know is SST, social science, social studies. So you may have spent there 4 to 5 days just before the examination only for qualifying the examination, you can say. और नॉर्मली जो अपने कॉलेज या स्कूल में होते थे, खास SST के टीचर होते थे जो अपने लोगों को बताते कि ऐसा है कि आप इनको रट्टा मार जाओ, और रट्टा मार के आप लिख दो एग्जामिनेशन हॉल में, एंड नथिंग टू वरी अबाउट दैट. यू हैव टू गिव 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट्स एटसेट्रा. और यू हैव नेग्लेक्टेड देयर द सोशल साइंस, दोज NCERT बुक. देन यू हैव डन योर डिग्री, you have just got qualification, you have been qualified, and after qualifying many of you may have even campus selection, you have joined the job, and after joining the job you came to realize ki no, the topmost examination in the civil services, we have not to miss the bus, we have to return for the preparation of the examination. Now we people have returned here after spending too much time, and once again started from the same NCERT book you have once neglected. So first of all, seek pardon from the NCERT book कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था क्लास 10th में.
अब हम करेक्ट करने के लिए आ गए। तो मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों की जो बेसिक रीडिंग होती है वो सिखाई नहीं जाती स्कूल और कॉलेज में। आपको बेसिक रीडिंग सिखाएगा कॉम्प्रिहेंशन। जो हम क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे, सरप्राइजिंगली दैट इज गोइंग टू अपग्रेड योर होल मेथड ऑफ रीडिंग। हमने क्या कहा, पैराडाइम शिफ्टिंग हमें करना है, तो कैसे करना है हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, whenever you are making a study, in making a study you will find कि in course of the study अब you are going through the NCERT book pages to pages, but if you have to do the note making, so you are confused here कि what to write and what to select, everything is okay। कई बार क्या होता है कि आप इवेंट्स के बारे में, डेट्स के बारे में, जो अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से उसको गैदर करके आप कॉपी पर नोट डाउन करते चले जाते हो, और आपको पूरे रीडिंग के दरमियान आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारे लिए सेंट्रल आइडिया क्या है। तो कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले आपको, जिसको क्रिटिकल रीजनिंग हम कहते हैं, जो अभी आपको क्रिटिकल रीजनिंग करनी है, दैट विल एजुकेट यू कि हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड एंड व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ रीडिंग। कि इन कोर्स ऑफ रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू कैच अप द सेंट्रल आइडिया। कोई भी जो पैसेज होता है उसमें एक सेंट्रल आइडिया होता है, एंड आफ्टर सेंट्रल आइडिया देन यू कैन से देयर इज सब्सिडियरी आइडियाज। सब्सिडियरी वो होता है जो सेंट्रल आइडियाज को सपोर्ट करता है, और तब होते हैं एविडेंस या एग्जाम्पल्स या एविडेंस। तो एविडेंस सब्सिडियरी आइडिया या सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करता है, और सब्सिडियरी आइडिया सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करता है। तो जितना भी कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होता है वो बड़ा मीनिंगफुल होता है। तो आपको कहाँ पर बेफुल करते हैं, दे आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन वेयर, so they will just give here firstly conclusion. Firstly they will give, as in reasoning part you will find here the hypothesis, inference and conclusion। मतलब कोई भी जो रीजनिंग होती है उसमें एक हाइपोथेसिस होता है, फिर उससे इन्फेरेंस लेना पड़ता है। जैसे ऑल मेन आर मोर्टल, राम इज ए मैन, तो राम इज मोर्टल। इसी तरह से क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस होता है, एक उसका इन्फेरेंस होता है, और एक उसका कंक्लूजन होता है। तो क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में कि आपको कंक्लूजन ऊपर में ही दे देंगे, और उसके बाद नीचे में क्या करेंगे, कंक्लूजन का जो एविडेंस देंगे वो बहुत वीक एविडेंस देंगे या गलत एविडेंस देंगे। और जब यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कनोटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो एक उसमें से कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट दे देंगे। आपको धोखा होगा कि अरे यार ये तो कंक्लूजन नहीं, यही तो ऊपर की लाइन है, यस ए इज करेक्ट। और लेकिन वो क्या होता है कि चूंकि वो एक वीक एविडेंस दिए होते हैं, इसलिए जो आपका ए स्टेटमेंट होता है वो गलत हो जाता है और पता चलता है बी स्टेटमेंट सही। और सरप्राइजिंगली स्टूडेंट्स आर perturbed about simply math as well as reasoning part, but I'll suggest student even be perplexed and be careful about this comprehension part as well. It was the same this place at Mukherjee Nagar, because I have to provide you the question paper and a lot of things, you know. So I have to provide you the question paper and I have to conduct the examination, even the exam in CSAT, etc. So my team is working over comprehension part to formulate the comprehension for carrying the test for the test among the students, you know. So whenever they are making the comprehension part, so here I have to share with you कि me as well as apart from my team, I myself has spent the time to find out the right answer in the comprehension, because very few people in the market are in a position to formulate comprehension. कॉम्प्रिहेंशन में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम पैसेज दे रहे हैं और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो पैसेज और क्वेश्चन का क्या लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। नियरली 26 to 27 questions are there, and that will be a trend setter. So let us come to my program, what we people have decided. First of all, in Sampurna PT, CSAT program for 90 hours. 15 hours would be spent over this comprehension part and 75 math, reasoning, etc. Mr. Rajesh Mishra is the well-versed and you can say well-trained teacher and very dedicated teacher. So he will just teach you this math as well as reasoning part
or the rest of the part you can say better word is, and I myself will teach you this comprehension part for 15 hours. अब in order to make you familiar, because today you will be familiar with me, और मेरा नाम वाम तो सुना ही होगा, तो लगा ही होगा कि इंसान थोड़ा सा ठीक ही है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो मेरे बारे में तो तुम आज जो भी जिनको कन्फ्यूजन होगा वाकिफ हो जाओगे, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू पीपल. But what about Mr. Rajesh Misra ji, who is going to teach you this part that is called CSAT part? So on 8th and 9th, I will provide you the free classes. First of all, come in touch with him, attend 2 classes in CSAT part. You are most welcome, and try to find out. And whenever I have discussed Mr. Rajesh Misra ji, in what way will you help the students, because there is the stipulated time. This is just the beginning of February, and we are having so many months at my disposal. We can transform the students within this period. So he has given me the assurance, and even myself has made a calculation along with him, at least we people will try to improve your performance by 10 to 12 more questions in CSAT. And 10 to 12 more questions in CSAT, you can very well imagine. यहाँ तो एक एक पर प्राण अटके हुए होते हैं कि काश ये क्वेश्चन हो जाए, ताकि मेरा 33. अब मेरे इवन इंजीनियर स्टूडेंट्स दे आर टॉकिंग, सर आई हैव एट द 32, माय परफॉर्मेंस 32. Previous year, one of his students might told he is just appearing in interview program. Now he was at 27. जब क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे होते हैं टेस्ट के बाद, तो लोग कहते हैं या गॉड, किसी तरह से 2 क्वेश्चंस का एडिशन करवा दो कि मैं रात में चैन से सो सकूं. So 10 to 12 questions can be a game changer. That is a major achievement. So I'll try at this point. ये तो हुआ एक part. Second one part is कि I have to conduct 16 tests. 16 tests. 10 tests for general studies and 6 tests for CSAT exclusively. In general studies test, you may ask a question, and you are having every right to question me. What is your specialty? Why I have to appear in your test, because so many test series is going on. So my students, I myself have realized this thing कि टेस्ट तो हर जगह चल रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन एक बहुत बड़ी डायकोटोमी है. जो यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई मैच नहीं. हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर लेके मेरे सामने हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं सर पीट लूं. Who have just formulated this question and why? तो 2 तरह के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में होते हैं. एक क्वेश्चन है कि इतने टफ हैं, it is almost impossible to crack it. And the second question is so easy कि you will swallow it up quickly. That should be some middle path as well. In UPSC, 25 questions up to 25, starting from 22 to 25, you can solve easily. जैसे हर 2-3 क्वेश्चन के बाद एक बार वो मिल जाता है, हर 2-3 क्वेश्चन के बाद मिल जाता रहता है, दिल गदगद हो गया. लेकिन अगला 2 क्वेश्चन के बाद फिर अरे यार, फिर तो वही गम. तो ऐसे 20 to 25 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इजिली, एंड 20 to 25 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व बियॉन्ड कंट्रोल. अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो एट योर ओन रिस्क. And in rest of the questions, the UPSC has formulated a plan, very smart institution it is. It will just encircle you from 3 sides and keep one side open. कि अगर तुम्हारे में अगर थिंकिंग क्रिएचर हो और सोचने की क्षमता है, तो तुम ये चौथे वाले रास्ते से इसको सॉल्व कर लो. अब द सेम क्वेश्चन आई विल प्लेस अप बिफोर द सो मेनी स्टूडेंट्स. एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होगा बी, दूसरे का होगा नहीं बी नहीं सी. तो पता चला कि सी ही करेक्ट आंसर है. वो ज्यादा क्लैरिटी जिसमें होगी वो सी करेगा, जिसमें कम क्लैरिटी होगी वो बी करेगा. तो जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, माने 25 क्वेश्चंस यू नो, 25% क्वेश्चन यू डोंट नो, एंड इन द रेस्ट 50% क्वेश्चन यू आर समथिंग बिटवीन नो एंड नॉट नो, व्हिच यू हैव टू डू एट योर ओन. तो अब आ जाइए उस मूल सवाल पर हम लौटते हैं. मूल सवाल हमारा ये है, द फंडामेंटल क्वेश्चन, कि व्हाई यू हैव टू अपीयर इन माय टेस्ट.
It is for the fact कि I have not, we have, my team has tried at my best to formulate the questions as much as possible on par with UPSC questions, as much as possible. Maybe 80%, maybe 75%, maybe 90%. We are just, लेकिन हाँ, हम आपको यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं. आप उस 10 टेस्ट में हमारे क्वेश्चन से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस का फायदा वहां जरूर होगा. कहेंगे क्यों फायदा होगा? इससे हमें क्या फायदा है? क्योंकि हम तो उसको पढ़ा नहीं रहे. फायदा है, एक तो डिस्कशन का फायदा है, नंबर 1. नंबर 2 कि इफ you are making preparation and you are in preparation mode, you are making a study of polity, economy, history, culture, etc., etc., so many subjects, if you have to confront the very wrong type of questions or factual questions which you will find normally in the test series, so whole of your orientation of preparation would be diverted in the wrong way, means you cannot do justice to the question. आप जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन अगर आपके सामने, जो क्वेश्चन आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट आपके सामने नहीं आता है तो आपका पूरा डायरेक्शन ही प्रिपरेशन का चेंज हो जाएगा. आप पढ़ने क्रम में फैक्चुअल पढ़ने लगोगे. एंड ह्यूमन माइंड इज हैविंग द अल्टीमेट कैपेसिटी. आफ्टर अ सिंगल वन पॉइंट यू कैन नॉट डू द फैक्चुअल क्वेश्चन. सो माई टेस्ट एग्जाम विल हेल्प यू थ्रू कैरिंग यू in the right direction of preparation and enlighten you to avoid the factual question and try to develop the larger concept first and take the informations just as an example. ये हमारे टेस्ट से आपको इतना फायदे की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं. अब एक सवाल आपके मन में होगा, you may ask me one question. I have conducted classes for CSET exclusively, but not for general studies. Why? There is secret. General studies cannot be prepared in separation from mains. There should be a combined effort of prelims and mains both. If someone trying to prepare general studies in prelims mode, he is committing a fatal mistake because he will never have the command over the GS. मैं कहा करता हूं अपने स्टूडेंट से, जब मेंस रूपी जाल फेंकते हो तो प्रीलिम्स रूपी मछली फंसती. आपको एक लार्जर पिक्चर में प्रिपरेशन करना होगा. अब मैं लार्जर पिक्चर आपको दिखाता हूं. हाँ, ये मैं आपको ORN में आज, चूंकि मैं आया हूं और आया हूं तो पूरा कमर कस के आया हूं आपके इस एरिया में. 2024 है. 2025 का प्रीलिम्स जो स्टूडेंट यहां दे रहे होंगे, here I am giving the assurance कि I will myself, that you can say, channelize the whole preparation in the manner कि the student will prepare the mains part and prelims part both simultaneously. What is my method? I have to share my, you people have to share my method, then you will be clear. चलिए हम आते हैं इस पॉइंट पर. देखिए, तो ये स्ट्रेटेजी की बात है, ये क्वेश्चन है. मैं सीधा आपको पॉइंट पर आता हूं. पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री से, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, व्हाट एवर पॉइंट यू पीपल आर डूइंग हियर. आई विल गिव यू द सजेशन एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू ऑर्गेनाइज द क्लास बिकॉज माई मेन प्रोग्राम वुड बी अनफोल्डेड फ्रॉम जून, एंड फ्रॉम जून थ्रू द कंबाइंड, you people will do the combined preparation of mains and prelims along with me, and the journey of prelims will be much more comfortable, I am going to assure you. But for this examination, I can give you certain suggestions, and these suggestions will work you. Tell me one thing. Just make me clear how are you going to prelims history part in, how are you going to prelims in history part normally, presently? You people are making preparation in prelims part in history. जैसे आप लोग हिस्ट्री का प्रिपरेशन करते हो, कैसे करते हो?
मैं आपको कुछ सूत्र दे रहा हूं, बी क्लियर. हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स इन हिस्ट्री पार्ट? क्या पढ़ते हो? यस, एनसीईआरटी, medieval India, modern India, spectrum. My students, whatever source you people are going to adopt and what source you are going to explore, I am not going to question the source. I am simply going to question the method of preparation. In what way? Here I have to make you clear. You are gathering the informations. Either you are making the notes or you are underlining the books, but you are always trying to gather the information. Gather the information in the manner that I have to gather about the different dynasties. I have to gather the information about the British colonial economy. I have to gather the information about the national movement, the Great Revolt of 1857, etc., etc. This is the quite unscientific method. ये बहुत ही अनसाइंटिफिक मेथड है. मैं आपको एक साइंटिफिक मेथड बताता हूं जिससे मैंने हिस्ट्री में पैराडाइम शिफ्टिंग किया है. वो मेथड मैं आपको बताता हूं. देखिए, जैसे ये देखिए हिस्ट्री. सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि आपकी हिस्ट्री में फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न हाउ मेनी पार्ट्स. तो पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री को हम साइंटिफिकली इसको डिवाइड करते हैं. वी हैव टू डिवाइड देम साइंटिफिकली. ओके, इन साइंटिफिकली देयर द वन टर्म प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री. This is the first one part. Prehistory and proto-history you might have heard about. Paleolithic period, Mesolithic period, Neolithic period, Chalcolithic period, Harappan civilization and Megalithic period, etc., etc. It is true that from prelims point of view, in this segment particularly Indus Valley civilization or Harappan civilization is a major topic, and that is very important from exam point of view. It is correct. But my students, neither me nor you can give a guarantee that they will not ask you the question from Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, because the UPSC is very deceptive in this manner. They are always UPSC always believes in taking sadistic pleasure through creating pain for the students. तो कुछ न कुछ ऐसा डालते रहते हैं जिससे कि स्टूडेंट थोड़ा सा उनमें बेचैनी हो. तो हम चांस नहीं ले सकते. वी कैन नॉट टेक द चांस. तो हम क्या करते हैं कि हम प्री हिस्ट्री में थोड़ा सा पेलोलिथिक, थोड़ा सा मेजोलिथिक, थोड़ा सा न्यूलिथिक, थोड़ा सा कैल्कोलिथिक लेते हुए तब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पर आए. और माय स्टूडेंट्स, इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन को इन सेपरेशन आप समझ भी नहीं सकते हो. आपके बचपना को समझे बिना आपकी इस युवावस्था को हम कैसे समझ सकते? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ the urbanization in Indian subcontinent. It was the first urban revolution. So how is it possible that without the knowledge of Neolithic and Chalcolithic we are going to explain about Harappan civilization? तो थोड़ा सा फायदा उसमें भी हो जाता है. फिर what happened to the Indian subcontinent after the decline of urban civilization like Harappan civilization? क्या सब मर मुरा गए, खत्म हो गए? आखिर हड़प्पन लोग थे, उनका जब डिक्लाइन हुआ तो फिर क्या हुआ? कुछ तो हुआ, कहाँ गए? What happened to this civilization? So after then the late Harappan culture, then you can say megalithic culture, etc., etc. will do that. Here we have to adopt a method. To study history means to study the change. देखो हिस्ट्री अगर कोई पूछे कि वह हिस्ट्री का पढ़ने का मतलब क्या है, तुम कहना कि हिस्ट्री में हमको इवेंट्स और फैक्ट्स है. दीज आर एग्जाम्पल्स. टू स्टडी हिस्ट्री मीन्स टू अंडरलाइन द चेंज. हमको चेंज पढ़ना. तो चेंज में यहां पर हम साइंटिफिक तरीका बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंज, फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज, देन इकोनॉमिक चेंज इन लाइवलीहुड, देन सोशल चेंज, देन कल्चरल चेंज. ओके, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वन चेंज टू अनदर चेंज. पॉलिटिकल,
जैसे आप सपोज करो here you will deal about political, there you can say climatic change, technological change, change in livelihood, in social change and cultural change. In this topic, through linking one topic to other, we will come to the last one point. And here I have to inform you that so far as the question of informations are concerned, the informations are the example. जैसे आप जो सूचना गैदर कर इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, एग्जाम्पल्स हैं. आप टेक्नोलॉजिकल चेंज देख रहे हो, लेकिन आप टेक्नोलॉजिकल चेंज में क्या देख रहे हो कि कॉपर का कब से शुरू हुआ, कॉपर से ब्रॉन्ज कब बने, स्टोन टूल्स में पहले मेजोलिथिक में क्या टूल्स था, फिर न्यूलिथिक में कैसे पॉलिश्ड वेयर का यूज हुआ. तो यही सब तो आपके फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स में आप बदलते हुए कंपोजिशन को देखते चले आए. फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को आपने देखा, दैट इज ओवर. एंड आफ्टर दैट then the second one part is starting from Vedic period to early medieval age. Vedic period to early medieval age. अब इस पीरियड का क्या है मैं आपको बताता हूं. During this period you have to adopt a different type of formula. Vedic period, Maurya, Buddha age, Maurya period, post Maurya period, Gupta period, post Gupta period and early medieval age. Although this period is early medieval age, but we are just going to count even early medieval age in this segment. Why? Because the trends which are visible in early medieval age, so these trends are just evolution from the post Gupta period or Gupta period. So changes which are going on from Gupta period and post Gupta period, so these are clearly visible in early medieval age. तो ये अब इसके लिए हम क्या फार्मूला अपनाते हैं चेंज का, इसमें हिस्ट्री को हम बांट देते हैं चार पार्ट में. पॉलिटिकल, जैसे पहला हुआ पॉलिटिकल, सेकेंड वन इकोनॉमिक, थर्ड सोशल एंड फोर्थ कल्चरल. Political, economic, social and cultural, that is going to be divided in four parts. Now in political, divide the political in two parts. The first part is political expansion. In political expansion, draw the map of India from Vedic period, observe the map, what is the expansion of early Vedic Aryans. Then in political expansion, what is the expansion of later Vedic Aryans and try to find out the places. मतलब कैसे लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस का एक्सपेंशन हुआ. फिर बुद्धा एज में आओ तो 16 महाजनपदा, लोकेशंस, कैपिटल एटसेट्रा, सो दैट विल बी क्लियर. देन कम टू मौर्य पीरियड, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, यू विल जस्ट ऑब्जर्व अबाउट द मौर्यन एम्पायर. देन आफ्टर मौर्यन एम्पायर, देन यू आर डूइंग अगेन टू पोस्ट मौर्य, व्हाट इज द पॉलिटिकल scenario of post Maurya, the states, empire, etc. After post Maurya, Gupta, what is the expansion of Gupta empire? Then what is the in post Gupta, what you know as the multi-state system? Then the Rajput states you will be clear. तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या होगा कि आप वैदिक पीरियड से लेकर आंख बंद करके थोड़ा सा सोचोगे कि अच्छा इसमें ये चेंज हुआ, ये स्टेट थे, इसके बाद गए तो कौन स्टेट आए, ये डायनेस्टी आई, इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई. इससे क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, सर्टेन क्वेश्चंस, कि डायनेस्टीज के आधार पर आपके चेंज हो जाएंगे. जैसे आप देखोगे, कहोगे भाई कुछ डायनेस्टीज ऐसी है इंडिया में जो आपको वो डायनेस्टी, जैसे क्वेश्चंस का जो फॉर्म आप देखोगे उसमें आपको जैसे आपसे पूछेंगे सातवाहनाज, लेटर गुप्ताज, तो उसमें आपको 5 to 6 डायनेस्टीज देंगे और डायनेस्टीज का क्रोनोलॉजी देंगे और कहेंगे कि आप मिलाइए इसमें कि आप इसमें पहले कौन सी हुई और दूसरी कौन सी हुई. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर दो, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री से होता है. तो दैट इज पॉलिटिकल हिस्ट्री. देन कम्स द टर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यू आर नॉट टेकिंग द चांस. एडमिनिस्ट्रेशन, इन एडमिनिस्ट्रेशन यू नो अर्ली वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 to 6 features. Features are the concept. After the concept, 6 to 7 features. After the concept, give the examples. Examples are the facts. So in early Vedic period, what is the position of king, what is the bureaucracy, what is the army, what is the tribal society. So all the features are there, 5 to 6 features, and with all the features you will find the example. And again, once again you find the examples,
The examples are the facts. Then from later Vedic, once again you are just moving towards Buddha age. In Buddha age, administrative structure, centralization is going on. Now suppose you can see in Vedic period to early medieval age, you will make a diagram A, B and C. In administration you will find that in A, that is Vedic period, and B, that is Maurya period, and C, Gupta period. लेकिन A से जब तुम B पर जाओगे तो सेंट्रलाइजेशन बढ़ता जाएगा, और B से जैसे जैसे तुम C पर आओगे तो सेंट्रलाइजेशन डिक्लाइन होता जाएगा. तो हियर आई हैव टू सिंपली, यहां पर मैं सिर्फ आपको ये हिंट करना चाहूंगा कि आप जब यू आर मेकिंग ए स्टडी तो आप फैक्ट्स मत देखो. जैसे पॉलिटिकल चेंज आपने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज देखा, इकोनॉमिक चेंज वैसे ही करो पूरे पार्ट 2 का. फिर सोशल चेंज करो, और चेंजेज के साथ तब फैक्ट्स को वहां डालो. जो फैक्ट जहां डालना है वहां फैक्ट्स को डालो. कल्चरल चेंज में आपको आएगा रिलीजन, फिलोसफी एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो रिलीजन है तो फ्रॉम वैदिक से रिलीजन शुरू किया, अर्ली मेडिवल तक डाला. फिलोसफी शुरू, रिलीजन फिलोसफी साथ ही होगा. देन यू विल कम टू अबाउट आर्किटेक्चर. सो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम मौर्य पीरियड. From Maurya period, the architecture is gradually developing. From Maurya, then post Maurya, then Gupta, then post Gupta, and all the facts would lie here. तो मैंने ये कहा कि हिस्ट्री आपका फैक्चुअल नहीं पढ़ना है. उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं, देखो पॉलिटी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का है तो ये डायग्राम बनेगा, और डायग्राम में डिवाइड करके जब मैं रेगुलर जब मैं क्लास जो करवाऊंगा तो whenever I just take the mains part simultaneously with the mains part, I will do the prelims part as well. And every class will start with the 5 questions in prelims part. Mains and prelims both are going to be complementary with each other, complementary to each other. We cannot view prelims part separately from the mains part. Both should work together. Then come to this point. This one. Acha, just can you solve one question? Can you solve this question? In consider the following: deification of Buddha, treading the path of Bodhisattva, third image worship and rituals. Yes. Now you are just moving from the previous topic to this topic. Here you will not simply try to recall about Bodhisattva या post Maurya religion etc. Otherwise you cannot recall them. Start to recall from Vedic period onwards. So during this period you will find the growing influence of Bhaktism, devotion. And this Bhaktism, concept of Bhaktism was going to influence even Buddhism along with Brahmanism, you can say. Just 1 minute. In 2018 you can say there was one question on medieval, one question. Observe this question. This one. Try at least. What? Jagirdars were holders of land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Land assignments to jagirdars were hereditary and revenue rights of zamindars were not hereditary. Now here you can say jagirdars were holders of land assignment in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. So jagirdars were holders of land assignment in lieu of judicial and police duties. ये गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि in this question, whenever you will go through the Mughal period, you will come to realize कि इक्तादारी और मनसबदारी में एक फर्क यही था कि इक्तादार जो होते थे, इक्ताधारक जिनको वली या मुफ्ती बोलते थे, they were even assigned the administrative rights as well. Mansabdars were not given any sorts of administrative rights.
और ये पूछ रहा है, इसने ये कहा कि जुडिशियल और ड्यूटीज और बाकी राइट्स उनको मिले हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और ये दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। तो लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। Even the post of the Mukti was not hereditary. And not to speak of the post of the Mansabdar, the Mughal emperors could not have allowed Mansabdars to enjoy the hereditary rights. तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट गलत हो गया दोनों। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। तो ये मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा कि यहां पर बेसिक प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में क्या है कि आप समझते हो कि मैं मनसबदारी पढ़ लूंगा तो मनसबदारी का क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आपको इक्तादारी की समझ नहीं होगी तो मनसबदारी का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो बेटर टू गो थ्रू चेंज। आप यह लालच छोड़ दो कि हमको इमीडिएट इंफॉर्मेशन के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आप स्पेक्ट्रम या किसी भी सोर्स से देख रहे हो। वैसे एक प्रीलिम्स में आई हैव प्रोवाइडेड अ बुक to my students, you can go through it, ancient, medieval and modern, that is called concept capsules. So there you will find, apart from modern, even ancient part, medieval part, etc., ancient part, medieval part and then modern part. तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसी तरह से जैसे जस्ट वन this one, go through this question with reference to, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्रेशर तो नहीं फील कर रहे? With reference to land reforms in independent India, which one of the following statements is correct? A, the sealing laws were aimed at family holdings and not individual holdings. The major aim of land reforms was providing agricultural land to all the landless, and it resulted into cultivation of cash crops as a predominant form. तो क्या तय हुआ? What has been decided by we people? How many will select choice A? Any of you? Choice B? Choice C? Choice D? अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं पूछना ही भूल गया। आप लोग सभी लोग पढ़े हुए हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, तो वन मैन डायलॉग हो गया। अरे थोड़ा हंसो, बोलो, कुछ तो करो। पढ़ने का मेजरमेंट क्या है? अच्छा, पढ़ने का मेजरमेंट एक बार सिलेबस कवर्ड हो गया है, हो गया। क्योंकि बहुत, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो 5 to 6 क्वेश्चंस लोगों ने हैंड रेज किया, और बाकी लोगों ने ना तो हाँ ना रो रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पढ़ा है इन्होंने या नहीं पढ़ा है, तो कुछ तो हिंट करिए। Have you gone through the topic? Have you gone through the syllabus? That's why creating problem. Here the choice should be the B choice is the correct choice. B choice is the correct choice because in this choice you can say, in the choice number A, sealing laws were aimed at family holdings and not individual holdings. काश इंडिया में ऐसा हुआ होता। यही तो प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल के हेडिंग पर दिया है, फैमिली पर नहीं दिया, इसीलिए तो बड़े बड़े जमींदार ने अपने लैंड को छिपा लिया, कवर कर लिया। और सी, इट रिजल्ट इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। एंड द लास्ट वन, लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स, ये भी सीलिंग लिमिट्स का एग्जेम्पशंस भी थे। So choice B is the correct answer. So my students, here I have to inform you कि through on factual basis, information basis, and on the base, you can say if you are doing the preparation, information based preparation, in the examination hall, that is going to just deceive you. You cannot rely on the informations. So please develop understanding. ये तो हिस्ट्री की बात हुई, जैसे हिस्ट्री में हम आपको और भी बताते, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और मुझे बाकी विषयों पर भी थोड़ी सी चर्चा करनी है। सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग फ्रॉम हियर एंड जस्ट मेकिंग क्लियर। अब हियर यू फाइंड हियर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी।
You people are making a study of constitution and polity, and if I am just going to ask you the question, which book you are consulting, I think you unanimously will reply my question. M. Lakshmikant. Am I right? Or any exception? अब देखो, एम लक्ष्मीकांत ने बुक को बहुत अच्छे ढंग से फॉर्मुलेट किया है. जितना भी एग्जिस्टिंग बुक मार्केट में है उसमें वो बुक में फॉर्मुलेटेड है. बट व्हाट अपीयर्स मिसिंग इन दिस बुक, हियर आई हैव टू शेयर विथ यू पीपल, कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है. जैसे हमें अगर पढ़ना है तो कुछ हमें हमारे थिंकिंग को थोड़ा एक्टिवेट करे ना. हम इंफॉर्मेशन गैदर करके क्या करेंगे, ये है पार्लियामेंट, ये है प्रेसिडेंट, ये है प्राइम मिनिस्टर के पावर, ये है ठीक है, एनालिसिस भी है. But in spite of the analysis, you can see in different topics you will not find any sort of connectivity. Here my suggestion is that the preparation of prelims cannot be done in separation from mains. So please do the preparation in mains and prelims both in this direction, and that will help you a lot. Up constitution and polity. First one is what is constitutionalism. In what is constitutionalism, you will come to realize कि changing concept of constitutionalism during modern is the great evolutions and the transformation of Western world. A brief study of the constitutions of the world, British, American, French, Canadian and Chinese. मैं ये चाहता हूँ कि पहले स्टूडेंट्स कोई पढ़ना शुरू करे तो पहले उसको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है. और तब पहले हम लोग वर्ल्ड में चलते हैं, दुनिया को देखते हैं. तुम लोगों का मुझे पता है, जैसा एज आई हैव बीन इन्फॉर्म इन ORN, कि पॉसिबली यू पीपल आर नेग्लेक्टिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट. मैं तुम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, एम आई राइट? मैं पढ़वाऊंगा. बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इज द गेटवे टू नॉलेज. ऐसा थोड़ा होता है कि आप एक टॉपिक को पढ़ोगे और सीधे उससे क्वेश्चन का आंसर कर दोगे. उसको बहुत बैकग्राउंड बांधना पड़ता है नॉलेज के लिए. नॉलेज के लिए चारों तरफ से बैकग्राउंड बांधना पड़ता है. इन वर्ल्ड हिस्ट्री यू कैन से कि राइट फ्रॉम द एंशिएंट वर्ल्ड टू कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड यू कैन रियलाइज द चेंज कि हाउ द वर्ल्ड वाज ट्रांसफॉर्म्ड, एंड इंडिया बीइंग द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ वाज इंडिया अफेक्टेड थ्रू द चेंजेस इन द वर्ल्ड. देयर इज द इन योर क्लास 9th NCERT, that is Fernand Braudel, he has made a statement कि without the knowledge of the world you cannot understand nation. आप वर्ल्ड के नॉलेज के बिना नेशन को नहीं समझ सकते. अब एक बात बताइए, आपका देखिए क्वेश्चन, go through this question. We adopted parliamentary democracy based on the British model. But how does our model differ from that model? Point 1. As regards legislation, the British parliament is supreme or sovereign, but in India the power of the parliament to legislate is limited. In India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. Select the correct answer using code given below. Choice A 1 only, choice B 2 only, choice C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. C is the already visible. C is here already visible, unfortunately. देखा नहीं था? यस. अब देखो, अब आप लोगों ने देख ही लिया है तो मैं शेयर ही कर लूं. जैसे दिस क्वेश्चन देखो, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन. हियर है कि ए द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बी द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एंड डी इक्वलिटी बिफोर लॉ. तो नॉर्मली क्या होता है कि दैट इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स कम टू बिलीव दैट कि दिस इज through the procedure established by law, but it is being inspired by American Constitution. In American Constitution there is the concept of natural justice. वहाँ पर natural justice का concept, और वो natural justice का concept जो American Constitution में आपको दिखता है वो हमारे Indian Constitution से वो concept अलग है. तो चलिए हम आपको ये बता रहे
कि बेसिकली जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़िए तो पहले पूरे ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी थोड़ी पहले आप अमेरिकन एवोल्यूशन, फ्रेंच एवोल्यूशन and different European evolution of 1848 etc. you should be familiar with, and then how the constitution making process went on in Europe. In Britain there was the evolved constitution, then in America it was the first framed constitution, first written constitution, and our constitution has been inspired by both the constitution on major scale and apart from that the minor influence from other constitutions of Europe. तो आप इस टॉपिक से वाकिफ हो जाओगे तो एक आपका यह एरिया निकल जाएगा। दूसरा आपका एरिया आएगा अदर इंस्पायरिंग फैक्टर्स बिहाइंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे रोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। सेकेंड वन, ब्रिटिश लेजिस्लेशन एक्सक्लूसिवली इंडियन काउंसिल बिल ऑफ 1919 एंड 1935। देन पार्टीशन ऑफ इंडिया। डू यू नो पार्टीशन ऑफ इंडिया आल्सो इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड पर्टिकुलरली द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप का आपका प्रोविजन है उस पर पार्टीशन का इंपैक्ट है। अर्लियर यू कैन से you were having a different sorts of perception about citizenship. The concept of jus soli, जस सोली का मतलब हुआ कि जो हमारी मिट्टी में पैदा हुआ है वो हमारा सिटीजन है। एंड देन आफ्टर द पार्टीशन वी स्विच्ड ओवर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जस सैंगुनस, कि दोज हु आर हैविंग द ब्लड रिलेशनशिप विथ इज दैट इज आवर सिटीजन, बिकॉज व्हेन द पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन द हिंदू मुस्लिम राइट्स अकर्ड, so a large number of Muslims migrated to Pakistan, and from Pakistan there was the migration of Hindus and Sikhs towards India. So now question arose, in what way we have to tackle with those refugees? Those refugees should be given the citizenship or not? And in the meantime what happened, from India those people who were migrated to Pakistan, so they vacated their house. So earlier the Nehru and Patel decided that those people who are coming from Pakistan, Hindus and Sikhs, they should not be allowed to occupy their house, because those people who have earlier migrated, the Muslims, so they had to rehabilitate in India. They have to brought from Pakistan and they have to just offer their old houses. मतलब उनका ये कहना था कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं उनको हम दोबारा फिर उनके हाउस को बचा के रखें और उस हाउस को हम उनको प्रोवाइड कर दें। तब तक जो उधर से सिख और मुस्लिम्स आए थे उन्होंने इनके हाउस हिंदू और सिख आए, उन्होंने इनके हाउस को ऑक्युपाई कर लिया। तब अब इनके साथ मजबूरी ये हो गई कि अगर वो लौट के आएंगे तो फिर हम उनको क्या देंगे। तो अभी भी तुम अगर सिटीजनशिप के क्लॉज को देखोगे तो देयर इज द प्रोविजन कि बिफोर 19 जुलाई 1948 whosoever came to India, so they would be naturally get citizenship, but whosoever has to come after 19th July 1948, they had to seek the permission from the government for citizenship. तो ये जो प्रोविजन लाया गया ये हुआ जस सैंगुनस। जो सिख और हिंदू हैं वो हमारे मिट्टी के नहीं है, पाकिस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन हमारे रक्त संबंध के हैं, तो इसलिए उनको हम सिटीजनशिप दे रहे हैं। उसी का बड़ा रूप है सीए जो आप ईस्ट में देख रहे हो। तो मुझे ये कहना है कि जैसे हम लोग सिटीजनशिप पढ़ते हैं तो मुझे तो बहुत फैक्चुअल लगता है कि आर्टिकल 5, 6 ऐसे। तो हम आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सिटीजनशिप है, पार्टीशन ऑफ इंडिया का इम्पैक्ट यहाँ दिखाया। दूसरा है द चैलेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एन यूनिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पर आपको सजेस्ट ये करना चाहेंगे कि पहले टॉपिक ऐसा बनाइए कि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक लिंक हो जाए। वन टॉपिक हैज टू बी लिंक टू द अदर। एंड द सेकेंड वन कि प्रीलिम्स का यहीं पर डेटा एक ब्लॉक बना के डालते जाइए साथ ही साथ, क्योंकि आप अलग बुक में अलग कॉपी में डेटा बनाएंगे तो फिर इससे लिंक बनेगा नहीं। तो मेंस का टॉपिक बनाइए और प्रीलिम्स का डेटा यहीं पर ब्लॉक बना के आप डालते जाइए। तो दूसरा टॉपिक आपका आ गया चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कैसे बना। उसके बाद देखो आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो ग्रेनविले ऑस्टिन है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था एक चीज कि एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अप टू 51 आर्टिकल 51 वी हैव स्पेंट आवर एनर्जी एंड टाइम फॉर स्पेसिफाइंग द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमारा आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स जब पूरा हो गया तो फिर तब हमने अंत में
अपने 52 से ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बनाना शुरू किया। इसलिए तुम देखो सबसे पहले हमने आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स दिया है। आइडियल्स ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करिए, वहीं पर आप मेंस का टॉपिक रखिए, मेंस की क्लैरिटी लाइए और प्रीलिम्स के टॉपिक को उसके साथ सजाइए। उसके बाद हमने कहा कि देखो पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशियल बॉडी पहला, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर नीचे पंचायती राज मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 3 ये आने के बाद तब सेंटर स्टेट रिलेशन का टॉपिक हो जो उसके साथ लिंक हो जाए डायरेक्ट। और इस टॉपिक से फिर ऑर्गन्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51, इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, और इसी तरह से आपका ये टॉपिक बढ़ता चला जाए। इससे क्या होगा कि इस जब आप मेंस के साथ प्रीलिम्स को जोड़कर देखोगे ना, तो आपका क्वेश्चन सब आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन आपका जैसे कोई भी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर रहोगे मेंस में, तो 50 to 60% questions you can solve in prelims from the mains point of view. 20% questions you will do the hard work in prelims, and then the rest of the 20% questions, after doing the hard work, 20% questions you cannot solve, whatever efforts you are going to make. But 20% question you can solve through the efforts of prelims, and 60% questions you can solve on the efforts of mains. क्योंकि जो मेंस का जो एफर्ट्स होता है उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसी तरह से मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इसको इकोनॉमी में भी बना दिया है। जैसे पॉलिटी में हमने कहा ना, उसी तरह से आपका इकोनॉमी का बनता है। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का लिंक बनेगा, फ्रॉम वन टॉपिक टू अदर टॉपिक। मतलब हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं, इस क्लास में डिटेल्स में कराना तो मुश्किल होगा, मतलब एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके पढ़िए और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप करिए और एक वाइडर आइडिया बनाइए और प्रीलिम्स के डेटा को उसके बीच में रखिए। प्रीलिम्स को आप सेपरेटली मेंस से डील मत करिए। एंड दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई आई कुड नॉट ऑर्गेनाइज द एक्सक्लूसिव क्लास ऑन प्रीलिम्स, बिकॉज समवेयर फाइंड की 50 आवर्स क्लासेस, 60 आवर्स क्लास रिवीजन क्लासेस फॉर प्रीलिम्स। रिवीजन इसमें क्या होगा? पता चले कि हमने 1 लाख चीजें रिवाइज कराई, वहां में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। रैंडम पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। प्रीलिम्स को आपको इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा और मेंस के साथ उसके डेटा को मिलाकर देना पड़ेगा। ओके, हाँ, आप ट्रेंड के लिए कर सकते हैं, जो ट्रेंड आपके मैटर में भी मैंने दिया हुआ है, आप ट्रेंड के लिए कर सकते, वही देखिए आप। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आई हैव टू इन्फॉर्म यू। अब देखो, अब दिस इज द ज्योग्राफी पार्ट। इन ज्योग्राफी पार्ट आई हैव माई सेल्फ रियलाइज्ड एंड आई हैव डिस्कस्ड इवन विथ माई टीम कि most of the students are being exhausted in the physical geography, in geomorphology and physical geography. मतलब हमने जिसको भी पढ़ते पढ़ाते देखा है, सब स्टोन की ही बात करता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात ही कहीं नहीं सुनते। ऐसा आप लोगों ने भी फील किया है क्या? वो बहुत उबाऊ लगता है, क्योंकि ज्योग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह है कि फिजिकल ज्योग्राफी से जियोमॉर्फोलॉजी, देखो जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी से ग्रेजुअली इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक से सेटलमेंट पैटर्न, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। लिंक होना चाहिए इसमें। जैसे देखो एक बात बताओ, आपको अगर कोई फूड सर्व करता है खाने, तो खाने में टेस्ट चाहिए ना, तो पढ़ने में भी तो टेस्ट चाहिए। अकेला टॉपिक हमको चीफ मिनिस्टर कोई पढ़ने के लिए कहे, टेस्ट ही नहीं आएगा। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अब उसमें अगर जैसे मैंने आपको पॉलिटी का ये बताया, तो अब देखिए अब ये है इकोनॉमी का। इससे पहले मैंने आपको आई हैव जस्ट गिवन यू द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटी। तो अब इसमें आई एम हैविंग द इंसेंटिव कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से हम आए इंडियन पर, इंडियन से हम फिर आए आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर तक हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक आ गए। उसके बाद टॉपिक्स आपको, उस टॉपिक के बाद तब उस टॉपिक के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इन तीनों को हमने डिटेल्स में स्टडी कर लिया। अब यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, तो इसके रिलेशनशिप को
एक्चुअली देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट थिंग एंड पॉलिटी इज डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल इन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 74 देयर हैज क्लियरली बीन स्टेटेड कि देयर वुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द एड at the head with the aid and advice to president in exercise of his functions. मतलब एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसके शीर्ष पर प्राइम मिनिस्टर होगा जो प्रेसिडेंट को उसके कार्यों में एडवाइस करेगा. तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 42 और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर वाज नॉट ए प्रोविजन कि इट वाज कंपल्सन फॉर द प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो कहानी शुरू हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम. ही खुद वो प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे. और जब उनसे पूछा गया whenever someone is going to ask you कि what do you think कि president should follow the advice of the council of ministers, तो he replied that कि not in every situation. And then Dr. Rajendra Prasad himself inquired from M.C. Talwar. M.C. Talwar, the Attorney General. Kishi Talwar, please tell me, is it imperative for us कि at every occasion I have to follow the advice of the council of ministers only? So C. Talwar replied, yes sir, this is essential. Otherwise, it will create the constitutional crisis. So then he once again he do the counter question. But I am running the risk of elections. What will happen to me? हम तो ब्रिटिश मोनार्क नहीं है जो पैदा होते ही मोनार्क बन गए. हमको तो इलेक्शन फाइट करना पड़ता है. इलेक्शन में हम हार सकते हैं. बीवी गिरी हार गए थे. तो वी आर जस्ट आई एम रनिंग द रिस्क ऑफ द इलेक्शंस. तो व्हाई शुड आई नॉट प्रोवाइडेड दिस थिंग? तो मुझे लगता है कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पॉलिटी को जोड़कर और सारे एस्पेक्ट को फिर जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स है ये सबको एक दूसरे से लिंक करके आप पढ़ोगे ना तो इंजॉय भी करोगे. मेंस में भी आपको क्लैरिटी रहेगी. मेंस के क्वेश्चन भी जैसे हम कंटेंट इसी मॉडल पर डेवलप करवा रहे हैं अपना जून के लिए. और टीचर भी इसी लाइन पर पढ़ाएंगे और मेंटर्स भी इसी लाइन पर सपोर्ट करेंगे कि देयर शुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. नॉर्मली क्या होता है कि आप जब कहीं भी क्लास करते हो तो स्टडी मटेरियल बिल्कुल अलग होता है. टीचिंग क्लास की बिल्कुल अलग होती है. और जो मेंटरशिप होता है वो फिर टीचर से अलग हो जाता है. तो ये तीनों तीन डायरेक्शन में होने से स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूजन. सो इन ऑर्डर टू डिस्पेल दिस सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन आई हैव डिसाइडेड, मैंने वी हैव डिसाइडेड कि the first of all materials should be formulated. That's why I have made an announcement of the batch. We are staying here at ORN, you know, right from last November, but we are going to open our batch from June onwards. Why? Without preparation it is not possible. तो पहले हम मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पर पॉलिटी बनवाया उसी में मैं प्रीलिम्स को भी साथ में एकोमोडेट कर लूँगा. तो मेरा जो प्रोग्राम चलेगा उसमें हम प्रीलिम्स के पार्ट को भी मेंस के साथ साथ हम लेते रहे. अब जैसे देखो इकोनॉमी का है. इकोनॉमी को थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी. तो पहले एवोल्यूशन में हम रीजनल इकोनॉमी, इंटर रीजनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी. पहले मर्केंटिलिज्म से स्टूडेंट्स पहले वाकिफ हो जाए. आफ्टर मर्केंटिलिज्म देन ही शुड कम अबाउट द क्लासिकल इकोनॉमिक्स. व्हाट इज क्लासिकल इकोनॉमिक्स? दैट इज माइक्रो इकोनॉमी. यू माइट हैव हर्ड अबाउट एडम स्मिथ. तो पहले इससे वाकिफ हो जाए. फिर उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ सोशलिस्ट मॉडल, क्या अल्टरनेटिव मॉडल रशियन रेवोल्यूशन ने डेवलप किया, उससे वो फैमिलियर हो जाए. फिर द क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन ने कैसे क्लासिकल इकोनॉमी को ब्रेक डाउन कर दिया, उससे वाकिफ हो जाए. और तब फिर द राइज ऑफ केनेसियन मॉडल एंड द इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल. केनेसियन इकोनॉमिक्स का जब इमरजेंस हुआ, फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर एंड डीकोलोनाइजेशन, तब दुनिया में जो कॉलोनी है वो इंडिपेंडेंट हुई. इंडिया वाज द फर्स्ट कॉलोनी. देन वर्ल्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड गैट, ये इससे जुड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉलोनी फ्री हुई तो इससे पहले क्या होता था कि जो भी कॉलोनी थी वो सबको तो 5-6 कॉलोनियल पावर मिलकर पूरे वर्ल्ड को चला रहे थे. ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन, जर्मन. लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब दुनिया की कॉलोनी जब फ्री हो गई तो अब जो कॉलोनियल पावर है उनको फियर होने लगा कि अब तो हमारा इकोनॉमी पर से ग्रिप हट जाएगा. तब दे हैव क्रिएटेड द न्यू कॉलोनियलिज्म इन द फॉर्म ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट एटसेट्रा. कि नाउ दीज इंस्टीट्यूशंस हैड टू रन द इकोनॉमी
and these institutions had to work for the betterment of the capitalist economy and the capitalist power in the world. तो इसी समय अगर हम ये सारे इंस्टीट्यूशन को डील कर लें, और तब नेशनल इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ जिसमें नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल है, इसी में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन सबको लेते हुए तब हम फिस्कल पॉलिसी एंड बजटरी इन्फ्लेशन, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी केन्स के बाद शुरू हुआ। तो खैर अभी तो मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि हम एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके आपको पढ़ने का सजेशन दे रहे, और जो अभी तो मैं नहीं अपना अनफोल्ड कर रहा हूँ, जून तक आप लोग वेट कर लीजिए अगर हमारा, तो आपको एक पैराडाइम शिफ्टिंग मिलेगी। हम आपको बिल्कुल से थिंकिंग क्रिएचर बनाएंगे और मेंस को प्रीलिम्स से लिंक करके पढ़ाएंगे। तब तक के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेस्ट प्रोग्राम, दैट क्वेश्चंस वुड बी ऑन पार विद द यूपीएससी, एंड CSET प्रोग्राम फॉर 90 आवर्स। उसमें 8th और 9th को मैंने बिल्कुल ही उसको ओपन रखा है। तो ये पूरा, इसमें थोड़ा सा हमने आपको जो मैटर दिया है उसमें हल्का सा मैंने आपको हिंट कर दिया है कि यू कैन गिव फोकस, मोर फोकस ओवर सर्टेन टॉपिक्स, यू नो, सर्टेन टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डेटा आपको दिया गया है, जो डेटा में कैसे कैसे क्वेश्चन किस सेगमेंट से ज़्यादा आते रहे, तो हल्का सा उसे फोकस कर लेना, बट दैट इज देयर शुड बी सम एक्सेप्शन एज वेल। जैसे आपके पास मैटर है ना, तो आप इस मैटर को देखिए, ये है ना, आप ये एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें आपका क्वेश्चन का ब्रेकअप दिया हुआ है कि इंडस वैली से कितने क्वेश्चंस रहे, जैनिज्म बुद्धिज्म से कैसे, मौर्य से कितने रहे, नन गुप्ता पीरियड, साउथ इंडिया मिसलेनियस। इसको एक बार स्टडी कर लेना, यू हैव टू गो थ्रू दिस डेटा। You cannot strictly follow this data, you have to, you can say, move out from that. लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा अपने कॉन्शसनेस में आप अगर रखोगे तो that will help you in preparation, it can help you. अन्यथा तो मेरा तो वही है कि पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, पूरा स्ट्रक्चर को बना के एक से दूसरे को लिंक करके पढ़ो। फिर लास्ट के 100 डेज में हमने थोड़ी स्ट्रेटेजी की चर्चा की है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। लास्ट के 100 डेज में हमने थोड़ा सा, आप लोगों को मैटर मिला होगा ये वाले, हमने यहाँ पर नेक्स्ट 100 डेज अप्रोच एक दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा आपको हेल्प कर देगा। अब नाउ यू पीपल हैव टू आस्क मी सम क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल बेसिक पर हो में से बहुत सारे लोग, तो अभी मैं आपको जो लिंकेज का प्रोसेस बताऊंगा शायद आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने उसको पूरे आपको नहीं समझाया। नहीं तो बहुत अच्छा है, जैसे इकोनॉमी का है, पॉलिटी का है, बाकी चीज़ें हैं, तो यू आर गोइंग टू लिंक वन टॉपिक टू अदर टॉपिक, सो दैट विल गिव यू द एन एडेड स्ट्रेंथ इन द स्टडी। मतलब आपको पहले एक मोटिवेशन पढ़ने का मिलेगा कि हाँ ठीक है, तो उसमें once my study material is going to be formulated, then I will do the great work कि हम आपको पहले जब बुकलेट देंगे तो आप उस बुकलेट में पहले टॉपिक को आप पढ़ के आओगे, तो आप में क्लैरिटी आ जाएगी। देन आई हैव टू इन्वॉल्व यू इनटू द क्लास, मैं टीचर आएंगे उसी लाइन पर आपको कवर कराएंगे, और सेकेंड डे तुम आओगे तो उस पर तुम्हारा 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स का और 1 and 2 क्वेश्चन मेंस का क्लास में रखा रहेगा। तो 10 क्वेश्चन जब आप प्रीलिम्स सॉल्व करोगे, उससे आपको कल वाले क्लास की क्लैरिटी और भी आ जाएगी, and then in mains you will just do the writing as well. और एक मैंने बेसिक फाउंडेशन का कोर्स रखा है। बेसिक फाउंडेशन का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स ऑफ बेसिक फाउंडेशन, आई हैव टू मेक यू क्लियर। उसमें मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू डू द प्रिसाइज राइटिंग एंड नोट मेकिंग, ये 4 हमारा होगा थियोरेटिकल पार्ट। हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू डू द प्रिसाइज राइटिंग एंड हाउ टू डू द नोट मेकिंग, ये 4 पार्ट हमारा होगा उसमें। और उसके बाद बेसिक हिस्ट्री, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक इकोनॉमी, बेसिक पॉलिटी, इसको हम पहले उसे फैमिलियर करवा देंगे, क्योंकि जो इतना कवर कर लेगा तो वो फिर एडवांस फाउंडेशन में करने में बहुत बेहतर स्थिति में होगा। तो मेरा अपना मानना है कि वो चीज़ आपका है। अब आप बताइए, हिस्ट्री में किसी एक पार्ट में आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो तो बोलिए। हाँ, वन बाय वन।
थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था माइक माइक बाकी लोग। पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे उसमें प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूँ मैं चाणक्य के अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आया था उसमें सर इतना डीप डाइव क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई वुमेन है और वो स्लेव है उसका कोई बच्चा है वुमेन अगर स्लेव होती है उसका जो बच्चा होता है उसका फादर अगर वो किंग होता है तो बच्चा स्लेव होगा नॉन स्लेव होगा या फिर अगर हम एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर में जब हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमें कितना अंदर तक डाइव लेना पड़ेगा जैसे देखो आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने जानबूझ के नहीं छेड़ा कि मुझे सोचा कि पहला क्लास है और आप लोगों का बम्बास्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको टच करके छोड़ दिया। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास भी कोई जादुई छड़ी नहीं है। आई एम नॉट हैविंग एनी मैजिकल टच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। I myself have felt in my student life that that is going to be a challenging thing. But if you are going to make a study through a systematic manner, so that will help you a lot, and then you can very well overcome most of the problems. Because about some questions, for example, in Kautilyan Arthashastra, if you are not aware, forget the question. You will miss the question. That hardly matters. That is not creating problem. But suppose you are doing the culture. इन कल्चर में रिलीजन, अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि अकेला बुद्धिज्म में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हम बुद्धिज्म की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप वैदिक शुरू करोगे, बुद्धिज्म शुरू करोगे, उसके बाद आफ्टर बुद्धिज्म जैनिज्म, देन इन पोस्ट मौर्य, देन गुप्ता, देन पोस्ट गुप्ता, तो यू विल मेक ए कॉम्पिटिटिव स्टडी दैट इज क्लियर। उसी तरह से रिलीजन फिलोसफी के बाद आपका आएगा लिटरेचर। तो लिटरेचर में यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वैदिक लिटरेचर, and starting from Vedic literature, then you are going to post-Vedic literature, then Buddhist literature, then this literature, then that literature, and gradually from age to age you are going through the literary text. So that will create a miraculous effect, and you will be surprised to know that most of the text you will learn through integrated approach, from Vedic to Buddha age, from Buddha to Maurya age, from Maurya to post-Maurya age, how the literary text is going to increase in number. But if you will just try to learn some text forcefully through rote, so that will not work. That will create problem. Rather, you can say you will gather too many facts. So just before the examination, 10 to 15 days before, this is going to create some sort of problem for you, and you will not bear the burden of the load of so many informations. तो उसको करके, जहाँ तक कौटिल्यन का आपने कहा कि वो स्लेव के बारे में था, तो ऐसे क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, वो बियॉन्ड कंट्रोल है, उसको क्या करोगे, और बाकी आप मैनेज कर सकते हो। और सर संगम लिटरेचर के क्वेश्चंस जो आए थे पिछले साल 2023 में, हम लोगों को बेसिकली थिरुकुरल और तोलक पीएम इन सब के बारे में पढ़ा जाता, 4 से 5 लिटरेचर। हाँ, लेकिन सर इतने डीप क्वेश्चंस थे, समझ नहीं आ रहे थे। नहीं, क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। एक्चुअली यू विल गो थ्रू द संगम लिटरेचर। तो पहले तुमको इंटरेस्ट पैदा करना होगा, तुम लोग पहले हिस्ट्री से डर जाते हो, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम फॉर यू। इन संगम लिटरेचर, व्हाट डू यू मीन बाय संगम? मीटिंग। हाँ, संगम फॉर व्हाट? Confluence of poets, Yes. assembly of poets. In assembly of poets, go through the last chapter in literature by A.L. Basham, The Wonder That Was India, and I am confident that will create some interest, your interest into this Sangam period. A.L. Basham has informed that 3 Sangams have taken place. The first Sangam took place at the place 10 Madurai, and in this Sangam only gods and seers participated. And a number of compositions were created, but these compositions were destroyed. And it was presided over by Saint Augustine. The second Sangam occurred at Kapatpuram. This is mythology, not history, like Ramayana and Mahabharata. Kapatpuram, and this was presided over by Nakira. And even in this Sangam, too many texts were compiled, but they were destroyed through a deluge, or you can say some storm, whatever may be. The only text was saved, that was Tolkappiyam, that was Tamil grammar. The third Sangam was presided over by Nakira, and this occurred at the place Madurai, and there 8 to Togai or 8 anthologies were composed.
तो इट एंथोलॉजी जो बोलता है उसी में 8 नाम है उसके, वो 8 नाम आपको याद नहीं रहेंगे, बट आफ्टर दैट एपिक्स वेयर कंपोज्ड, जिसमें उस एपिक्स में आप देखोगे कि 2 है शिल्पादिकारम और मणि मेखलाय, उसके नाम आपको याद है, और तोल्कापियम के नाम याद रखेंगे, और एट्टू टू गई के नाम तो है अरिनई, करितो घई, अहनानुरु, पूर्णानुरु, परिपादल, तो इस तरह के नाम आपको याद नहीं रहेंगे, थोड़ी दिक्कतें होंगी। सर लास्ट क्वेश्चन, इज एनी प्रेडिक्शन वर्क हियर? या क्या कोई प्रेडिक्शन काम करता है? नहीं, प्रीलिम्स में कोई प्रिडिक्शन काम नहीं करता है, सिर्फ प्रिपरेशन काम करता है। एक खास स्टैंडर्ड क्या प्रिपरेशन हमारा होना चाहिए, उसके बाद प्रिपरेशन के बाद आप उसको अपने आप को छोड़ दीजिए। हमने खुद प्रीलिम्स दिया था, हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया किसी प्रीलिम्स में दिक्कत हुई हो, क्योंकि जब पहली बार प्रीलिम्स दिया था तो हमें भी फियर हुआ था कि पता नहीं हो पाएगा, वो हमेशा फीलिंग होती है। लेकिन उसके बाद आई जस्ट qualify the examination, because then I came to this point कि if you have created certain standard of knowledge, so at certain standard of knowledge you will just qualify. कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ करेक्ट होंगे, एंड माइनस प्लस सिलेक्शन, थोड़ा माइनस होगा थोड़ा प्लस होगा, सिलेक्शन होगा। एनी फर्दर क्वेश्चन? आप लोग प्रिपरेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो बोलिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं आपको क्या अभी बताऊं फिलहाल। हाँ, कल का क्लास मत मिस करिए, कल और परसों CSAT का क्लास होगा, मिस्टर राजेश मिश्रा जी होंगे, मैं भी क्लास में आऊँगा उनके साथ। टाइमिंग ऑफ द क्लास होगी 4:30 ना, 4:30। सो यू पीपल आर जस्ट 8 और 9 का मैंने ओपन क्लास रखा है, एवरीबडी शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। हाँ, यस। Hello sir. Sir, as a UPSC, what demand from me as an aspirant? As an aspirant, what UPSC demand from me in day-to-day activities? That is UPSC demand from me in which that is we are. Don't try to know about the demand of UPSC, otherwise you will be slightly worried, because this is the toughest examination in the world. UPSC demands the smartest demands some sort of smartest chap. You have to be a smartest chap, you know, and you have to fulfill the requirement of UPSC, and for fulfilling the requirement of the UPSC you should be the knowledgeable enough, you should develop some mental alertness, and you should be, you can say, open to India and the world. माने इंडिया एंड वर्ल्ड की तुम्हें बेहतर जानकारी चाहिए। तो यूपीएससी का जो मेन डिमांड होता है यही होता है। Sir, how to calm before the exam? हाउ टू Calm. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखो, कई बार क्या होता था एग्जाम में कि मुझे एग्जाम से पहले आई माई सेल्फ फेल दिस प्रॉब्लम कि नींद उचट जाता था, नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता है नींद उचाट हो गया, अब नाउ आई कैन नॉट स्लीप इन द नाइट। तो मैंने फील किया कि ये ऐसा इसलिए होता था कि मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि आज अगर नहीं सोया तो कल मेरा पेपर खराब हो जाए, और नींद नहीं आती थी क्योंकि डिपेंडेंट हो गया। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार मेरे पास इतना स्टेमिना है कि मैं 3 दिन बिना सोए भी पेपर दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत नींद आ गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो, अटैचमेंट है, उससे पीड़ा होती है। हियर आई एम जस्ट talking about an anecdote of 3 brothers were going on the road. They just observed from distance कि some house had caught fire. किसी घर में आग लगी हुई। तो 3 भाई थे, पहले बोले किसके घर में आग लगी हुई। तो एक भाई ने कहा कि बस किसी ने उसको रास्ते में कहा कि आपके ही घर में आग लगी हुई, बस रोना शुरू कर दिया। In the meantime, the younger brother has given him the proposal कि भैया please don't weep, have patience. I have get it insured yesterday, and the cost of the house is only 3 lakhs, and I have get it insured in 6 lakhs. तो जो बड़ा भाई है, जो उसको पता चला कि 6 लाख में इंश्योरेंस इसने करवा लिया है, तो आंसू पोंछ के हंसना शुरू कर। लेकिन तुरंत उसके बाद उसने कहा एक दूसरे भाई ने कि बट सर देयर इज वन प्रॉब्लम। भैया 1 प्रॉब्लम हुआ कि मैं उससे रिसिप्ट लेना, हम रिसीट नहीं ले पाए थे, रिसीट मेरा मिस हो गया, बस फिर रोना शुरू कर। तो क्या है वो, हाउस से अटैचमेंट।
जब अटैचमेंट जब लगा 6 लाख रुपये ज़्यादा बड़ा है तो अटैचमेंट खत्म हुआ तो हंसना शुरू किया। यार जब तक अटैचमेंट जिंदगी में है, महात्मा बुद्ध इतने समझदार थे, क्यों घर छोड़कर चले गए? उनको लगा कि भाई ये पूरा लाइफ में दैट इज फुल ऑफ सॉरो, जो कहते थे। हमारे और आपके लाइफ में जहाँ अटैचमेंट होगा, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहोगे तो पेन होगा। टेक द पेन विथ प्लेजर and take it as a necessary evil. There is no way out. डरो नहीं, बस बियर करो। जैनिज्म क्या कहता था कि आप शरीर को इतना पेन दो कि वैसे ही सोल निकल जाएगा खुद ही। यस सर, नमस्ते सर। यस सर, अभी आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट में। सर, वो करंट अफेयर्स को लेकर के क्या करना है? देखो, करंट अफेयर्स के लेके तुम लोगों ने हमें एक्चुअली हमने ऐसा महसूस किया कि मेनी ऑफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द स्टडी, तो इसलिए तुम इस चीज़ को अभी नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया कि जून में मैं जब क्लास लूँगा तो मैं ये पूरा, चूँकि मेरा सिस्टम अनफोल्ड होगा, जब मेरे सामने स्टडी मटेरियल रहेगा तो खोल के तुमको टॉपिक दिखाऊंगा, देन यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि व्हाट्स माई मेथड इज। What about the current? Actually, in current also I have conceived a different ideas, just as a paradigm shifting. I have just coined a term that is the specific name you that is called GS मंथन। अब what is GS मंथन? अब जैसे मान लो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपने टॉपिक इकोनॉमी, ये सब ट्रेडिशनल आपने पढ़ लिया हुआ है। अब मैं मानकर चलता हूँ कि which newspaper you people are consulting? न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? Internet. Now, how many of you are just going through the newspaper, you know? Okay, and rest of the people are internet. इंटरनेट वाले में आप कैसे मैनेज करोगे आई डोंट नो, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर में पूरे वीक का न्यूज़पेपर तुम गैदर कर लो, या इंटरनेट के सोर्स से हो, जिस सोर्स से हो, इवन यू कैन सेंड PDF फॉर्म एंड व्हाट एवर मे बी द फॉर्म, एंड ऑन एवरी संडे just try to, actually my idea is कि how GS traveled this week। हर वीक में थोड़ा इकोनॉमी ट्रैवल करता है, थोड़ा पॉलिटी ट्रैवल करता है, थोड़ा साइंस टेक ट्रैवल करता है, थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन ट्रैवल करता है। तो 1 वीक में इनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसमें तुम जैसे ट्रेडिशनल जब नोट, जब यू हैव टू फॉर्मुलेट ए ट्रेडिशनल नोट, जैसे पॉलिटी का तुमने नोट बनाया, तो एवरी जो मेजर टॉपिक है उसके बाद 4 to 5 पेज को तुम वैकेंट छोड़ दो, खाली छोड़ दो। 4 to 5 पेजेज को आप खाली छोड़ दीजिए जीएस में, जैसे कोई भी टॉपिक बनाइए, और जो करंट में जो इशू हुआ है उस करंट के इशू को 4 to 5 पेजेज में, जैसे इस वीक में जो हुआ है, जैसे मान लो अब चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के रिलेशन को लेकर हुआ, तो एक न्यू डेवलपमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है? तो गवर्नर को अब तक चॉइस ये था कि गवर्नर आइदर कैन रिटर्न द बिल, कीप द बिल विथ हिम, or you can say sign the bill. But Supreme Court now snatch his right to keep the bill, कि आपको या तो रिटर्न बिल कर देना है या फिर साइन कर देना है। जो रिजर्व बिल है, रिजर्व बिल का राइट उसको नहीं रहा। तो एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के रिलेशन में। वही ये टॉपिक है, उसी टॉपिक पर तुम यू हैव टू राइट इट डाउन, you have to write it down. So in this way, in current, on every week, try to underline what happened in economy, what happened in polity, what happened in science tech, what happened in international relations. In every week, maximum you will find 4 to 5 important major developments, and try to update your traditional with the current every week. That is the solution, I think. और मैं यही solution करने जा रहा हूँ अपने classes बच्चों को। ये हर week में how GS traveled this week मुझे बताना है। Sir, for reading newspaper, reading newspaper or Hindu newspaper. No, I am reading Indian Express. Yeah. What I'm asking is like it's getting very difficult to understand which news is going to be benefit from the exam perspective. Because that is going major through question. going through the entire newspaper and covering or making notes is taking 3 to 4 hours every day. Right. This is even in during my early days of preparation, I myself have faced this problem. On Hindu newspaper, only 2.5 hours were spent. No, actually,
you can use the newspaper in two sense. Whenever you have made the preparation in traditional mode a bit earlier. Suppose you can say you have finished polity, you have finished economy, then you will go through the newspaper. That is more useful for you. Otherwise, you will not find out what is important for you and what is less important and what is not at all important. So it is possible after gaining certain knowledge through traditional study. On the specific day of newspaper, if you will come in generalized manner, how can you on each day the nature of the news is varies from each other. So on daily basis, it is very difficult to find out. If you will just bring the newspaper with me, then I can earmark if this is important, this is not important. It varies from paper to paper. Okay. तो अब फिनिश किया जाए. हेलो सर. यश, मेरा नाम सुधांशु राज है या. सर. सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो. और कोई कहता है कि ये थियोरी पढ़ लो, कोई कहता है कि थियोरी मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो. तो क्या डिफरेंस है थियोरी एंड कॉन्सेप्ट में? क्या दोनों सेम है? और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट और थियोरी में कोई डिफरेंस नहीं है. थियोरी हो, प्रैक्टिस हो, कॉन्सेप्ट इज द क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. If you are going to have the command over some topic, it means you are conceptually clear. Otherwise, concept is not going to be the quite different thing. For example, sir, this is pen. अगर हम कहते हैं कि इस पेन के बारे में थियोरी पढ़ते हैं और इस पेन का कॉन्सेप्ट कोई आदमी समझ गया, तो क्या है? मतलब कोई कहता है कि इसे मान लीजिए सपोज ए है. को ध्यान रखना आप लोग, कल और परसों CSET का ओपन लेक्चर है, आप लोग आना मोस्ट वेलकम. सपोज एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है. ए कहता है कि मेरे पास इस पेन का थियोरी है, हम थियोरी जानते हैं, और बी कहता है कि नहीं, हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं. तो क्या कहना थियोरी और कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है. ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है. अब मिलते हैं 8th 9th यानी कल और परसों. हम लोग आप लोग आइएगा CSET का क्लास, देन वी विल स्टार्ट. ओके.